Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will do second book of English, that is Vistas chapter 2, The Tiger King. Full chapter 1 shot 2026-27 special Topper Squad, MP board and CBSC. So let's start the Vistas chapter 2, The Tiger King, a satire on the conscience of those in power. You will see the meaning when we will go ahead. Okay, meet the author first, that is Kalki. This is Kalki. Meet the author, say hi. Okay, now Ramaswamy Iyer Krishnamurti, okay, better known by his pen name. Uska pen name Kalki. 1899 to 1954. He was a Tamil writer, journalist, and independence activist. His writing often featured historical fiction and social satire. He was known for his wit and subtle criticism of the British and local rulers. उस समय ब्रिटिशर्स का भी रूल चल रहा था, ठीक है. तो literary style of Kalki, satire and irony, he uses humor to expose the foolishness and ego of rulers who prioritize whims over welfare. इस मतलब ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार एक समझ में आने लगेंगी. तो कन्वर्सेशनल, the narrator speaks directly to the reader, making the complex political satire feel like a folk tale. Non-linear, the story begins with the announcement of death and moves back to the principal. ये जो स्टोरी जब ये शुरू हो रही है ना, जब ये स्टोरी तो ना ये पहली बोल रही है कि जो टाइगर किंग है ना उसकी डेथ हो गई. ये पहली डेथ से शुरू हो रही है, ठीक है. तो द रॉयल बर्थ, प्रोफेसी, मिराकल एंड द इन्फेंट प्रिंस. इन्फेंट मतलब छोटा सा. द फर्स्ट मिराकल, पहला मिराकल. ओके, so this is my book with me. Take your NCERT English book with you, and I'm reading, so just see. Okay, Kalki 1. The Maharaja of Pratibandhapuram in the hero of this story. हम इसका पता चल गया कि इसका मेन कैरेक्टर, स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है. महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General Khelidar Major Sata Vyangar Samhari Maharaj Adhirar Viva Bhuvana Samrat Sir Jilani Jung Bahadur MAD ACTC और CRCK, but this नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू टाइगर किंग. जैसे आप लोगों का नाम जैसे होगा ना, जैसे आप लोगों का कुछ भी होगा, बिट्टू या मतलब कोई भी नाम होगा, जैसे निकनेम होते हैं ना. जैसे मेरा नाम कुछ नितिशा है तो मेरा निकनेम होगा कुछ भी जो मैं बताऊँगी, बहुत फनी, ठीक है. तो मेरा निकनेम होगा, आप लोगों का भी बहुत सारे निकनेम होंगे, लड्डू गोपाल और ये बहुत सारे निकनेम होंगे. तो वैसे ही राजा जी के भी बहुत सारे निकनेम होंगे. हम यही नहीं बोलेंगे कि वो क्या बोलेंगे, महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम. तो कभी बोलेंगे द हाईनेस, उनका नाम लगे, या द टाइगर किंग. उनको स्पेशली ये जो सारे नाम है ना, इसको शॉर्ट करके उन्होंने द टाइगर किंग नाम रखा. अब आप सोचोगे टाइगर किंग कैसे नाम आया, तो वो देखेंगे आगे, ठीक है. सस्पेंस है अभी, ठीक है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of the Sukta bomber will not throw me off track. The Sukta, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अभी ये बोलता है कि देखो, मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मेरी स्टोरी से, चाहे वो तुका बॉम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो. मुझे जो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ उससे मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ही नहीं. राइट एट द स्टार्ट,
It is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. आप एक मैन से मिल रहे हो जिसके पास इतनी करेज है, उसने इतना कॉन्फिडेंस रखा हुआ है कि वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो स्तू का बॉम्बर ही क्यों ना हो, ब्रिटिशर्स भी क्यों ना हो, मुझे इस स्टोरी लिखने से कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. फेस टू फेस सोचो कितना होगा. But there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dasaratha. Okay, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि शुरुआत किससे हो रही है? डेड से. तो द टाइगर किंग इज डेड. पहले ही बोल दिया कि टाइगर किंग डेड हो रहा है. अब शुरू होती है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. जो डेथ जो है ना, डेथ वो मतलब आप देखते हो ना कि कैसे डेथ होती है, किसी की कैसी डेथ होती है, कॉज ऑफ डेथ. तो ये उसका बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आप सोचोगे कॉज ऑफ डेथ बहुत इंटरेस्टिंग, हाउ कम? तो वो देखना. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. जब लास्ट में आएंगे तब वो आपका सस्पेंस खुलता जाएगा धीरे धीरे. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born. ठीक है, तो जैसे कोई राजा के घर में कोई पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, वो जब राजा के घर पे वो पैदा हुआ था तो ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि उसकी जन्म कुंडली निकालो. जब वो बड़ा होगा तो वो कैसे क्या करेगा, क्या बनेगा, कैसे जिएगा, कैसे होगा, कुछ जो भी क्या उसका फ्यूचर है, तो वो सब आप निकाल के दो. ठीक है. तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die. वाह 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 वाह, तालियां. मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ही बता रहे हैं कि ये जो किंग है ये एक ना एक दिन मरेगा. जैसे हमें तो पता ही नहीं है भाई, जो भी इस धरती में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना होगा. ये हम सबको पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है. तुम क्या अलग से प्राणी हो? ठीक है. तो उसने क्या बोला कि भाई ये एक ना एक दिन मरेगा. भगवान, हम सबको पता है, तुम लोगों को भी पता होगा कि जो धरती पे आया है वो एक ना एक दिन जाएगा ही, है ना. कोई वो अमृत पी के तो नहीं आया होगा ना. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. But they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. वाह वाह वाह, तालियां बजाना एक बार, तालियां. ठीक है. तो इससे क्या बोला कि देखो, पहले बोलता है एस्ट्रोलॉजर बोलता है the child will grow to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. फिर उसने ऐसे मुंह को ऐसे करके ये बोलना तो नहीं चाहिए था पर बोलना पड़ रहा है. तो देखो, ये जो चाइल्ड है जब ये धरती पे आए इसको एक ना एक दिन जाना भी पड़ेगा. तालियां तालियां. ठीक है. At that very moment a great miracle took place. उस मूवमेंट में जब उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये जब इस जन्म लिया है जिसने, इसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली सबको जाना पड़ेगा. जो भी धरती पे जन्म लिया है वो ये नहीं है कि वो पूरा जिएगा, नहीं. मतलब कभी ना कभी तो उसका टाइम आएगा ना जाने का, भगवान बुलाएंगे उसको अपने पास. ठीक है. तो एट दैट वेरी मूवमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस. उसी टाइम एक ग्रेट मिराकल टुक प्लेस है, लेता है प्लेस. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur. O wise prophets,
भाई आप सोच सकते हो कि वो 10 साल उसका बात नहीं है, 10 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ महान ज्ञानी, ओ वाइस प्रॉफिट्स. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. अब उन्होंने बोला, उसने बोला, उस जो है ना उसका नाम ओल्ड जिलानी जुंग बहादुर ने बोला, ओ वाइस प्रॉफिट्स, जो भी इस धरती में जन्म लेता है ना उसको एक ना एक दिन ऊपर जाना ही पड़ता है. कोई इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं बता रहे हो तुम. जो भी धरती में जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है. कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है ये, ठीक है. सब ऐसा एक ना, अब ऑब्वियसली 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, इट्स अ मिराकल. तो वह सब एक मतलब सब ऐसे देखने लगे, ब्लिंक करने लगे अपनी आई से, ठीक है. ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक. फिर वो देख रहे कौन बोला यार, कौन बोला. ओ ग्रे वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई, मैं हूँ वो, मैंने बोला, मैं ही बोल रहा हूँ. दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. मतलब इतना क्लियरली उसने वर्ड बोला, ओ वाइस प्रॉफिट्स, मैं बोल रहा हूँ, इट्स मी. और इसको अब कोई डाउट नहीं था कि वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है. It was like really a miracle. The chief astrologer took off his spectacles and gazed instantly at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. हाँ, अब उसने क्या बोला, जब वो एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मा उठा के ऐसे रखा और उसको ऐसे देखने लगा, फिर वो बच्चा ही बोलता है कि ऑल दोस्त जो भी इस धरती पे जन्म लेते हैं उनको एक ना एक दिन मरना पड़ता है, एक ना एक दिन जाना पड़ता है. देखो इसमें आपकी कोई प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सबको पता है, ठीक है. अब आप अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि अगर आप बताओ कि कॉज ऑफ डेथ किससे होगी, तो मेरी डेथ किस चीज़ से होगी, वो बताओ, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. तो अब वो इतना छोटू सा 10 दिन का बच्चा अपनी इतनी क्लियर वॉइस में बोल रहा है और हर चीज़ क्लियरली उसके मुंह से निकल रही है. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. अब जो एस्ट्रोलॉजर, जो सबसे स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपना चश्मा उतारा और ऐसे उस बच्चे के ऐसे नोज़ पे रखा, ठीक है. उस बच्चे के ऐसे नोज़ पे रखा, ठीक है. उस बच्चे के ऐसे इधर नोज़ पे ऐसे रखा, ठीक है. तो और नोज़ पे ऐसे रखा कि भाई ऐसे रखा कि देखने के लिए कि ये बच्चा ही बोल रहा है कि, और एक 10 दिन का बच्चा बोल पा रहा है, ओपन कर पा रहा है अपने लिप्स और बोल पा रहा है इतने अच्छे से, इतने क्लियर वर्ड्स निकाल रहा है, इतनी अच्छी वॉइस है उसकी. और वो भी नहीं ऐसे फालतू क्वेश्चंस, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन उसने रेज किया है, इनक्रेडिबल. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, ऐसे उसने हटाई, his nose and fixed his eyes upon the little prince, ऐसे उसको देखने लगा. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore death comes from the tiger, he explained. अब इसने बोला, देखो मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो किसी और से समझना, पर मैं इतना बोल रही हूँ कि जो वो है, कौन है जो अगर बोलूँ क्या बोलूँ, हाँ जो प्रिंस है, ये जो प्रिंस है जिलानी जुंग बहादुर, जो प्रिंस है वो एक आर ऑफ द बुल में क्या जन्म लिया उसने. तो बुल और टाइगर जो होते हैं वो एनिमीज होते हैं. क्या होते हैं? एनिमीज. जो बुल है और जो टाइगर होते हैं
वो दोनों एनिमीज होते हैं। देयरफॉर जो डेथ है, उसने बोला कि जो डेथ है वो टाइगर से आएगी, क्योंकि बुल और टाइगर एनिमीज है। तो जब बुल के आर में इसने जन्म लिया तो बुल और टाइगर एनिमीज हैं, तो टाइगर से ये मरेगा। ठीक है, ही एक्सप्लेन, उसने बोला, किसने बोला? यू मे थिंक दैट Crown Prince Chungjung Bahadur was thrown into a quag when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अब वो जो उसको जैसे ही पता चला ना कि मेरी डेथ टाइगर से होगी, तो वो डरा नहीं, अरे टाइगर से होगी, मैं गॉड, टाइगर तो बहुत डरावने होते हैं भाई। मैं उसने क्या बोला? टाइगर को अवेयर होने दो, टाइगर, लेट टाइगर्स बी अवेयर, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मैं देखूंगा, मैं सामना करूंगा टाइगर्स का। वाह, ये रूमर्स भी हो सकता है या सच भी हो सकता है, कुछ मुझे नहीं पता, या ये रूमर्स है या सच है। अब हम स्टोरी जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सच है, कुछ सच होगा, कुछ गलत होगा, या मिराकल सच होगा, पता नहीं। देख, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर वी विल कम टू नो। ओके, सो अब ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। At the Maharaja's birth, astrologers predicted his death would be caused by a tiger. Because क्योंकि वो बॉर्न हुआ था एट द आर ऑफ द बुल, और बुल और टाइगर जो होते हैं एनिमीज होते हैं। अगर वो आर ऑफ द बुल में पैदा हुआ है तो वो टाइगर से मरेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। Suddenly the 10-day-old infant speaks. All those who are born will one day have to die. Tell us the manner of death. The chief astrologer warns कि the 100th tiger is the one you must be aware of. अब ये बाद में बोलता है वो, देखो अब जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो क्राउन प्रिंस चुंग बहादुर grew taller and stronger day by day. ये बहुत टॉल हुआ, बड़ा हुआ, बहुत पावरफुल हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्कवर्ड। जो इवेंट बताया कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और वो भी उल्टी पुल्टी बातें नहीं, रबिश नहीं, क्या बोल रहा है? ये हम सबको पता है कि वो ये हम सबको पता है कि बस एक चीज़ बता दो कि ये कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ। वो सबको पता है कि जो भी इस धरती पे जन्म लेगा उसको मरना ही होगा एक न एक दिन। ठीक है, ये कोई वो फैक्ट नहीं है। आप अगर ये बताओ, इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं, अगर आप ये बताओगे कि मेरी कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ कैसे होगी, तो फिर वो इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है भाई, सोच सकते हो। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an English man, wow, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब देखो, उससे कौन था, उसको तिलक विलक हो गया, उसका राज्य अभिषेक हो गया, सब हो गया। ठीक है, अब इंग्लिश काऊ से दूध पी रहा है, इंग्लिश नैनी से जो भी उसको पाल रही है, तिलक विलक कुछ नहीं है, अभी राज्य तिलक नहीं हुआ, छोटा सा इंग्लिश नैनी उसे पाल रही है, इंग्लिश मैन से वो पढ़ रहा है, इंग्लिश मूवी देख रहा है, मतलब वो अपने आप को फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रेन कर रहा है। वाओ, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ द ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। When he came of age at 20, जब वो 20 का हुआ, the state which had been with the coat of yards until then came into his hand. अब जब वो 20 का हुआ तो उसका राज्य अभिषेक हो गया, राज्य तिलक हो गया, वो गद्दी पे बैठ गया आराम से। ठीक है, But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. पर जो प्रजा थी किंगडम में, उन सबको पता था कि इसकी डेथ कैसे होगी, टाइगर से होगी।
तो इसलिए सब घबरा रहे थे कि कैसे टाइगर क्या होगा ऐसे. Many continued to discuss the matter slowly. It came to the महाराजा ears. लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसी ही मैटर. अब वो धीरे धीरे तो भाई फैलता है, तो वो धीरे धीरे महाराजा के कान में भी आ गई बात. अब जब वो बात महाराजा के कान में आई तो भाई क्या हुआ वो देखो. ठीक है, अब देखो. द क्राउन प्रिंस चाइल्डहुड, स्ट्रिक्ट इंग्लिश एजुकेशन, ड्रैंक मिल्क of an English cow, brought up by an English nanny, tutored in English by an English man, watched only English films. At age 20, the kingdom came into his hands and the quest began. The War of Death. अच्छा देख, फिर हम ये पढ़ते हैं, फिर देखेंगे बाद में. ओके. But everyone in the kingdom remembered हाँ इतना देख लिया हमने. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. अब देखो, महाराजा के कान में घुसी ये बात कि भाई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि मेरी डेथ टाइगर से होगी. तो अब उसके कान में आ गई. तो अब उसने बोला कि पहले ये बोलते थे ना कि अगर आप काऊ को मार रहे हो सेल्फ डिफेंस में, खुद को बचाने के लिए, तो कोई गलती नहीं है. तो अब राजा ने रीज़न क्या दिया टाइगर को मारने का कि मुझ सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ, वो मेरे ऊपर आ गया, मैं सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहा हूँ. तो इसलिए राजा को, जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम थे, तो महाराजा स्टार्टेड, अब वो टाइगर हंट करना चालू कर दिया उन्होंने. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. जब उन्होंने पहला टाइगर मारा, तब क्या हुआ, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो क्या हुआ. जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो वो थ्रिल्ड हो गए, मजे से झूमने लगे. ठीक है. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष आया था उनका देखने, एंड शोड हिम द डेड टाइगर उनको दिखाया. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. क्या बोलते हो, अब बताओ क्या बोलते हो. मैंने मार दिया टाइगर को, टाइगर से डेथ होगी मेरी. वाह वाह वाह. योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer growled. But what? Speak without fear. अब एक बचपन में वॉट आया था और एक अभी कि बट. बचपन में एक बट आया था कि बट ऐसा होगा. इस अभी भी इतना बट आ रहा है. बट उसने बोला कि देखो, तुम चाहे 99 टाइगर्स मार लो, चाहे 99 टाइगर्स मार लो, बट अब बट के आगे तो बोलो. तो बट व्हाट? स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. उसने बोला तुम 99 टाइगर्स भी मार लोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 100 जो 100th वाला टाइगर है उससे तुम्हें बच के रहना, वो तुम्हें मारेगा. What if the 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? उसने बोला अगर 100th टाइगर भी मैं मार दिया तो क्या होगा. तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड आई शेल कट ऑफ माई टुफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. एस्ट्रोलॉजर ने क्या, उसने क्या, राजा ने क्या बोला, महाराजा ने क्या बोला, अगर मैंने 100th टाइगर को भी मार दिया तो क्या करोगे. तो उसने बोला, जो ज्योतिषी था उसने बोला, मैं ये जो मेरे ये जो बाल जो वो लगाते हैं उसको काट दूंगा, जो बाल को छोटे कर दूंगा और वो कर दूंगा, और मतलब माई हेयर शॉर्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन, सारी बुक्स फाड़ दूंगा, फायर पे जला दूंगा उसे, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. पर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो ज्योतिषी तो कभी करूँगा ही नहीं. ठीक है.
क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस था ना, उसने बहुत सारे लोगों को बताया था और उसकी बात सच निकली होगी, तो इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है, तो कॉन्फिडेंट था। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. टाइगर्स के लिए इंजॉयबल डे था कि टाइगर्स खुश हो गए, भाई बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश बल्ले। क्यों? क्योंकि जो महाराजा थे उन्होंने एक वो लगा दिया, बैनर टाइप का लगा दिया था जिसमें लिखा था कि टाइगर्स आर, मतलब टाइगर्स को हंट करना बैन है, मना है, एक्सेप्ट राजा के अलावा कोई भी टाइगर्स को हंट नहीं कर सकता। चाहे उसको अगर कोई इतना सा भी पत्थर मारते हुए दिख जाएगा ना, उसका भी सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth, जो भी उसकी वेल्थ है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो सब कॉन्फेस्टिकेटेड, मतलब ले लिए जाएगी, हत्या ली जाएगी। तब महाराजा वोड, अब तो ये जो चीज़ थी ये टाइगर्स के लिए तो बहुत अच्छी कि भाई अब लोग हमें मारेंगे नहीं, लोग हंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में हंटिंग ही ज़्यादातर थी, टाइगर का हंट ही ज़्यादा करना था। तो अब टाइगर्स खुश हो गए, भाई बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। तब महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग दी 100 टाइगर। उसने सब कुछ साइड में रख दिया कि जब मैं 100 टाइगर मारूंगा तब मैं इन चीज़ों को देखूंगा। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. वो अपने टारगेट पे ही टिका रहा, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। Not that he faced no dangers, there were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब वो कभी कभी जो बुलेट थी वो मिस हो जाती थी, उसको लगती नहीं थी, या कभी वो जो क्या बोलते हैं टाइगर उसके ऊपर झपट्टा मारकर ऐसे से लड़ाई करता था, ऐसे बेयर हैंड ऐसे से लड़ाई कर रहा उससे राजा, और हर टाइम महाराजा ही जीतता था। क्या लग है, ठीक है। तो ये देखते थे, महाराजा किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर एंड शोड इट टू एस्ट्रोलॉजर। ही देन वोर टू किल 100 टाइगर्स। He issued a proclamation nobody else may kill a tiger except Maharaja. Volunteers will have their wealth and property confiscated. He put all state duties aside to focus only on tiger hunting. Let tiger be aware. ठीक है। Conflict, the British दोराई। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भी देखो। At another time, he was in danger losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. तो उसने बोला, मतलब एक अब ऑब्वियसली जो प्रतिबंधापुरम है ये माना जाता है इसमें बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं। तो अब वो आया जो हाई रैंकिंग ऑफिसर, उस समय मैंने बताया ना ब्रिटिश राज चल रहा था, तो ब्रिटिश राज चल रहा था, तो जब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बोला कि देखो, राजा से परमिशन मांगने गए कि राजा जी हमें परमिशन दीजिए कि हम यहाँ पे टाइगर्स को हंट कर सके और एक फ़ोटो खींच सके। तो उसने बोला कि देखो आप मॉस्किटो हंट कर लो, आप बियर हंट कर लो, आप मॉस्किटो हंट कर लो, आप माउस हंट कर लो, कुछ भी कर लो, वी आर रेडी, बट टाइगर हंट बिल्कुल भी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। वो जो उन्होंने रूल बनाया था ना उस पर अटल रहे वो।
द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड। अब देखो थ्रोन इसलिए वो क्योंकि तब ब्रिटिश राज चल रहा था ना, अगर उन्हें कुछ भी मतलब अगर इतना सा भी गुस्सा आता है ना तो वो, हमने जैसे पढ़ा है ना उसमें हिस्ट्री में, इतना सा भी गुस्सा आता है निकलो निकलो जल्दी निकलो, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा शायद, जल्दी निकलो यहाँ से, मतलब हटा ही देते थे राजा को। तो इसलिए वो उनको डर लगता था कि मैंने इनको नाराज़ कर दिया तो भाई मेरा थ्रोन तो गया, मैं ही गया। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal if he relevanted now. What would he do if other British officers turned up for टाइगर हंट्स? अब जब उसने अब ब्रिटिश ऑफिसर ने अपना क्या बोला दीवान भेजा उनको बोलकर कि देखो एक्चुअल किलिंग आप करोगे पर बस उसके मुझे वो टाइगर चाहिए, उसके ऊपर मैं पैर रखूँगा और एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा, बस इतना काम है, इम्पॉर्टेंट यही है, बस आप सारी चीज़ें करना, आप एक्चुअल किलिंग करना। तो उसने बोला नहीं, अगर ये फ़ोटो देखकर दूसरे ब्रिटिशर्स भी मेरे ये प्रतिबंधापुरम में आने लगे तो मैं किस किस को मना करूँगा, क्या करूँगा? बिकॉज ही अब उसको और डर लग गया कि मैंने और नाराज़ कर दिया राजा को कि भाई अब मैं ये भी नहीं करने दे रहा हूँ, ना कि मारने दे रहा हूँ, ना कि फ़ोटोशूट करने दे रहा हूँ। अब बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. Obviously danger में आएंगे ना क्योंकि तब ब्रिटिश रूल चल रहा था। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewels in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. अब ये बोला जाता था पहले कि क्या बोला जाता था कि if wife is happy so the husband is also happy, ऐसा बोला जाता था पहले के ज़माने में। तो अब ये जो राजा महाराजा थे प्रतिबंधापुरम के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब उनको एक टेलीग्राम के थ्रू मतलब उन्होंने वो गए कैलकटा के बड़े कंपनी में जहाँ जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, वो गए और उनसे ना कितने मतलब उन्होंने डायमंड 50 रिंग्स अराइव, मतलब जो 50 रिंग्स का ऑर्डर दिया, 50 डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया डिफरेंट डिज़ाइंस का जो बहुत यूनिक है। सम 50 रिंग्स अराइव, द महाराजा सेंट, जो वो पूरा डब्बा जो था वो महाराजा ने किसको दे दिया, ब्रिटिश किंग को भेज दिया। अब महाराजा को लगा ये इनकी पत्नी से 2-3 रिंग चूज करके मुझे सारी चीज़ें वापस कर देगी, पर हुआ क्या, महाराजा ने जो वो उसकी पत्नी थी ब्रिटिश किसकी, ब्रिटिश ऑफिसर की, उसने वो पूरा डब्बा ही रख लिया। ठीक है, पूरा डब्बा ही रख लिया ब्रिटिश उसने, और उसको देने पड़े 3 लाख रुपये। जो महाराजा था ना उसको देने पड़े 3 लाख रुपए, उस समय बहुत थे। ये मैं बता रही बिफोर 1947 की बात है, ठीक है। तो और उसमें वहाँ से एक लेटर आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। वो सोच रहा था कि 2-3 अंगूठियाँ लेकर ये मुझे बॉक्स वापस कर दी, भाई उसने पूरा डब्बा ही रख लिया। और पर्ची में क्या लिखा, उसने भेजा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। वाह वाह वाह, नाइस नाइस। Came from in 2 days a bill from 3 lakh rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that thought he had, मतलब उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए, पर उसने अपना जो थ्रोन था उसे लूज करने से बचा लिया, मतलब ब्रिटिश से बचा लिया। He had managed to retain his kingdom, ठीक है, समझ में आया। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful
Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 100 years में वो able था to kill 100 tigers. Okay? अच्छा ये देखते हैं. The situation, the high-ranking British officer wanted to hunt a tiger. हाँ, so ठीक है. तो हमने देख लिया, रेजोल्यूशन देखा. द महाराजा रिफ्यूज fearing other officers would follow. He sent a bribe to the officer's wife. फिर the cost, the 50 diamond means 3 lakh rupees sent for her to choose. She kept them all. अब उस 2-3 बोला था कि 2-3 रखो, उसने सारी रख ली है. ठीक है. He paid 3 lakh रुपए, sorry 3 lakh rupees, a massive sum of amount of for kingdom. He choose pride over money उसने चूज किया. ठीक है. तो वैनिशिंग टाइगर्स, अब ऑब्वियसली 70 टाइगर्स वो मार चुका है 10 ईयर्स में. तो 10 ईयर्स में वो 70 टाइगर्स मार चुका है. तो ऑब्वियसली टाइगर्स एक्सटेंट होने लगेंगे. टाइगर्स वहाँ से भागने लगेंगे कि भाई डर के मारे, ओ भाई बहुत डर लग रहा है भाई, भाग जाओ यहाँ से. ठीक है. तो द महाराजा's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 70 tigers, oh my god. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. यही जो unforeseen hurdle था, यही hurdle था क्या, कि जो tigers थे वो extinct होने लगे थे. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri. मतलब कि कैसे कि भाई जो टाइगर्स है वो बच्चों को जन्म नहीं दे रहे. अगर बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो जो पॉपुलेशन है वो कम ही रहेगी टाइगर्स की. अगर वो यही टाइगर्स यही चाह रहे होंगे बच्चों को बर्थ देंगे तो वो यह मार डालेगा, तो इससे अच्छा बर्थ ही मत दो. शायद उन्होंने ये सीखा होगा बर्थ कंट्रोल और committed harakiri, or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. मतलब उनको वो भेज दिए गए, मतलब उनको वो भाग गए यहाँ से, या तो कि भाई ब्रिटिश के हाथों से मर जाएंगे. तो one day the Maharaja sent for his Dewan Sahib. Aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो उसने बोला, वो जब ऐसे गन साफ कर रहा था, बोला अपने दीवान को बुलाता है, आपको नहीं पता कि मैं इसको 30 टाइगर्स और मारने हैं, अभी बच्चे हैं, 70 टाइगर्स ही मार रहे हैं मैंने सिर्फ. तो दीवान, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, मतलब गन को साफ करते करते पूछता है. शडरिंग एट द साइड ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर. तो जब वो गन को, अब वो बौखला गया भाई, डर गया कि गन को साफ करते करते बोल रहा है मुझे ही ना मार दे. तो वो गन को ऐसे ऐसे साफ कर रहे थे. ठीक है. तो अब बोलता है, वो दीवान बोलता है, मैं टाइगर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टाइगर. बोला, हट, विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन बुलाएगा तुम्हें टाइगर. बोला, नो, एंड आई एम नॉट अ गन. मैं गन भी नहीं हूँ. ओ भाई, तुम ना कि टाइगर हो, तुम ना कि गन हो दीवान साहब. आई summoned you here for a different purpose. मैं कुछ और पर्पस से आपको यहाँ बुलाया. आप टाइगर भी नहीं हो, आप गन भी नहीं हो. तो आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. दीवान थोड़ा और पगला गया. वो उसने बोला, महाराजा ने मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैरी हो जाऊँ, मैं शादी कर लूँ किसी से. तो वो दीवान बोलता है, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू. उस दीवान बोलता है, मेरे पास 2 wives हैं, अगर मैं आपसे शादी करूँ तो पता नहीं. तो बोलता है, सत्या गया है क्या, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, क्यों मैं तेरे से शादी करूँगा, पागल दिख रहा हूँ मैं. what I want is a tiger. उसने बोला, मुझे टाइगर चाहिए. भगवान. Your Majesty, please think it over. Your ancestors' Tiger King is more than enough for this state. It doesn't need a Tiger Queen as well. तो बोलता है, देखो टाइगर किंग ही अच्छा है इस स्टेट के लिए, टाइगर क्वीन नहीं चाहिए स्टेट को. बोलता है,
और बौखला गए। तो बोलते द महाराजा गेव अ लाउड हा हा हा, ऐसा महाराजा हंसता है। I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. समझ में आई? मैं ना कि टाइगर से शादी करने के लिए बोला, ना कि गन से टाइगर है, ना से टाइगर सॉरी, ना कि मैं भी बोल रही हूँ, ना कि गन से शादी करने के लिए बोला, ना कि टाइगर से शादी करने के लिए बोला। मैं शादी करने वाला हूँ एक गर्ल से, ह्यूमन बीइंग से। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native state. अब देखो, ये भी खुद की भलाई के लिए कि भाई वो 30 टाइगर्स मुझे मिल जाए तो तभी मैं उससे शादी करूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो उसने अपने दीवान से बोला कि तुम ट्रैक करो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी टाइगर्स की, उस अगर उस किंगडम में एक लड़की होगी जो मेरे से शादी करेगी, उस और अब दामाद है तो वो डाउरी तो देगा ना, तो वो अब जब भी उधर जाता था अपने मायके तो वो क्या करता था, 30 टाइगर्स को हंट कर देता था। सॉरी 30 नहीं, 4 to 6 टाइगर्स, देखते हैं 5 to 6 टाइगर्स को हंट करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने बोला जी हजूर। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट। ठीक है, तो ठीक है, कहाँ तक देखा था हमने, इन्वेस्टिगेट I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. The Diwan followed his orders, Ji Majesty. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Chung Bahadur killed 5 or 6 tigers every time he visited his father-in-law. जब भी वो उसके फादर-इन-लॉ के घर जाते थे तो वो 5 to 6 टाइगर्स को हंट करके जाते। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधापुरम। अब जो उनकी जब उनका ना स्किन को, वो स्किन से ना उनके कपड़े बनाए जाते हैं, तब के समय में ऐसा होता था। तो तभी ना उनकी जो रिसेप्शन वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे वो सारी जो उनकी जो स्किन को निकाल कर जो भी मटेरियल जो भी बनाया जाता है वो वहाँ पे रिसेप्शन में लगा दिया था इन द प्रतिबंधापुरम प्लेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फॉरेस्ट एक्सटिंक्शन, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधापुरम। द महाराजा वॉज डेस्परेट फॉर 30 मोर। द स्ट्रेटजी, he decided to marry a princess from a state with a large tiger population. Every time he visited his father-in-law, he killed 5 to 6 tigers. ठीक है, the search अब 99 टाइगर्स उन्होंने किल कर दिए थे, अब वो बचा था 100वां टाइगर। कौन सा आता था? 100वां टाइगर। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब एक टाइगर चाहिए था, बस एक टाइगर चाहिए था, सिर्फ एक टाइगर। उसका जो यहाँ जो फीवर था उसका यहाँ तक आ गया, मतलब वो इतना गुस्से से उबल रहा था। He had this one thought during the day and the same dream at night. मतलब उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि कब क्या होगा, कब मैं मारूंगा टाइगर को। हर जगह वो टाइगर 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 ही देख रहा था। By this time the tiger farms had run dry. Even उसके फादर इन लॉ और उधर प्रतिबंधापुरम में जो टाइगर्स थी वो एक्सटेंट होना शुरू करते गए। It becomes impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. सिर्फ एक चाहिए था, वो 100th टाइगर। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. जब वो एक उस टाइगर को मार देगा ना तो उसके अंदर कोई फियर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether. वो गिव अप कर सकता है उसकी हंटिंग। अब कोई इसका प्रोफेशन नहीं था ना उसको टाइगर हंट करना, बस उसको डर था कि मैं मरूँ ना। ठीक है, तो आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द लास्ट वन eluded him. He was furious.
doubled taxes and threatened to fire his divan. अब वो इतना गुस्से से थपड़ा हो गया कि भाई उसने बोला कि मैं दीवान को फायर कर दूंगा, सबको हटाते जा रहा है वो। ठीक है जी, हाँ उसका, हाँ मैं ये बोल रही थी उसका प्रोफेशन नहीं था कि वो टाइगर्स को मार रहा है, उसको बस ये डर था कि मैं मरूँ ना टाइगर से। पर जो अपना लिखा रहता है जन्म से पहले, जो अपना लिखा रहता है, अपना कुंडली बनी होती है, तो वो तो होना ही होता है, जो भगवान चाहते हैं वो तो होना होता है, तो वो कोई पलट थोड़ी सकता है। तो बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल with that last time. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th tiger. जो महाराजा है should be aware of the 100th tiger. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it, but where was that 100th tiger to be found? कहाँ पाया जाए? It seemed easier to found tiger, मतलब अब ये easier लगा कि टाइगर का मिल्क मिलना बहुत ईजी है, टाइगर नहीं मिल सकता, जिंदा टाइगर नहीं मिल सकता। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear, frequently from a hillside village. अब जो शीप थी वो बिगैन टू डिसअपियर हो गया। अब ऑब्वियसली जो शीप है या तो वो टाइगर हंट करके खा रहा होगा, कहीं छुपा होगा टाइगर, वो हंट करके खा रहा होगा, या तो इट वॉज फर्स्ट असर्टन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादिर मियान साहिब और विरासामी नाइकर। मतलब ये दो लोग हैं जो शीप को ऐसी बिना रुके ऑब्वियसली देखो ना, शीप को बिना रुके खा रहे हैं ये दोनों लोग, क्या ये उनका काम तो नहीं है? तो बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3 महाराजा खुश हो गए उनके जो भी उन्होंने बोला, तो उन्होंने 3 ईयर का टैक्स फ्री दे दिया कि भाई कोई टैक्स नहीं भरेगा, फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। निकल गए। अब वो एक टाइगर में मार के रहूँगा। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ने से ही मना कर दिया कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूँगा। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. अब महाराजा का जो गुस्सा था वो बहुत बड़ा हो गया, तो तुम ये काम नहीं कर रहे हो निकलो यहाँ से, तुम ये नहीं कर रहे हो निकलो यहाँ से, तुम ये नहीं कर रहे हो निकलो यहाँ से, ऐसा हो रहा था। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax for it. उसे बोला दीवान इधर आओ, इन्होंने मुझे वो बोला था ना कि टाइगर मिल गया, टाइगर नहीं मिला है, तो जाओ और जो लैंड टैक्स उसको डबल करके आ जाओ। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. अब उसने बोला देखो महाराजा काम भी सोचो, क्योंकि देखो अगर इस ऐसे आप बढ़ा दोगे तो अपनी प्रजा आपकी नहीं रहेगी, फिर वो अपोजिशन पार्टी की हो जाएगी, फिर हमारी तरफ कुछ नहीं करेगी। तो वो उनके बारे में सोच रहा था। इन दैट केस यू विल रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आपको रिज़ाइन भी करना पड़े, पता नहीं। सेट दैट किंग। द दीवान वेंट होम। उसने बोला करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं है, फायर। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house.
अब वो बोला कि देख, अब उसने उसने सोचा कि देखो, एक टाइगर मैंने मंगवाया था और वो आज ही आने वाला है और वो सो रहा है आराम से इधर ही मेरे घर पर, पीपल्स पार्क इन मद्रास से आया है। तो भाई मैं इसको ही उठाकर वहीं डाल देता हूँ, उस पार्क में ही डाल देता हूँ जहाँ महाराजा हंट करते हैं। तो महाराजा देखेंगे और मार देंगे, तो उनका वो शांत होगा। तो एट मिड नाइट when the town slept in peace, जब टाउन सो रहा था, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat, मतलब उसको ऐसे जैसे कि जैसे उसको पुल करके उसको कार में डाल दिया, उस टाइगर को कार में डाल दिया। ठीक है, टाइगर बहुत हैवी होता है वैसे। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and reached the forest. The tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. अब उसको पता चल गया कि भाई ये मुझे इस जगह लेके आए हैं जहाँ पे लोग, जो महाराजा है वो टाइगर्स को मार रहे हैं, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, माफ़ करो, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वो उसने भी सत्याग्रह मूवमेंट चालू कर दिया, वो भी वहीं अटल रहा, वो भी नहीं हिल रहा, मैं नहीं हिलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा इस जगह। तो वो जैसे कि तैसे उसको खींच धक्के मार मार कर उतारा, जैसे कि तैसे उतारा। ठीक है। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? क्या command करते हो? So after killing 99 tigers, the last one eluded him. He was furious, doubled taxes, and threatened to fire his divan. The divan, fearing for his life, brought an old weak tiger from People's Park in Madras. उसने बुलवाया था और वो उसी दिन वो आने वाला था, आ गया था, उसके घर पे सो रहा था। And hid it in the forest. The Maharaja took aim and shot. अब वो देखो क्या हुआ, वैसा ऐसा आया और बोला, महाराजा जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मुझे कमांड करते हो मैं कर दूंगा, मुझे बख्श दो, ऐसे बोलता है। क्या कहेंगे वो, तुमने देखा? हाँ, तो ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द, हाँ कहाँ गया, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, मास्टर what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. उसने छोटी सी बंदूक निकाली छुपके से और उसको शूट कर दिया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. My wish has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. अब महाराजा खुश हो गए, भाई 100 टाइगर को मार दिया मैंने। The Maharaja hastened away in his car, मतलब उसने बोला 100 टाइगर को ले आना, मैं जा रहा हूँ। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. जो देखने गए कि टाइगर मर गया ना। In bafflement, वो ऐसे अपना आईज रोल कर रहा था। वो सिर्फ वो बुलेट को देखकर वो थोड़ा बेहोश हो गया, मरा नहीं था। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The hunters wondered what they should do. अब देखो उस समय क्या था कि उस समय राजा बहुत हाइपर था, तो वो सारे लोगों को ऐसे ही जॉब से निकाल रहा था, जैसे हमने पढ़ा। अब जो राजा था उसने 100 टाइगर को मार तो था ही नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुआ था वो बुलेट के डर से। तो उसने क्या किया, वो जो क्या था, ये तो क्या बोलते हैं ना, हाँ टेररिस्ट, ये कहाँ से वर्ड आया, नहीं सॉरी, ये जो लोग थे, द बुलेट हैड मिस्ड इट, द हंटर्स wondered that what should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target.
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपना जॉब लूज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो थोड़ा सा दूर गए और उस पर निशाना कर दिया. तो one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shoot the tiger. This time he killed without missing his mark. टारगेट को देखकर उसने उड़ा दिया. ठीक है. The Maharaja took aim and shot the tiger, collapsed. The king left in triumph, thinking he had fulfilled this vow. पर उसमें एक ट्विस्ट आया, उसको राजा ने नहीं मारा. सिर्फ वो बुलेट से डर कर बेहोश हो गया. राजा ने नहीं मारा, उसको मारा तो किसने? हंटर ने मारा. The bullet had missed. The tiger had merely fainted from the sound. The hunters, fearing the king's wrath, killed the tiger themselves. The king's 100th tiger was killed. Fate's final strike on his sons. अब उसके जो अब वो इन सबको छोड़कर अपना प्रोफेशन, मतलब उसका प्रोफेशन तो था ही नहीं ना, बस वो डर था उसको कि टाइगर से वो बचे. तो उसने 100th टाइगर मारा और फिर अब वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा था. जब उसका 3rd बर्थडे आया तो वो उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहा था. तो ऑन हिज son's 3rd बर्थडे द किंग ब्रॉट अ वुडन टॉय टाइगर एज अ गिफ्ट. एक वुडन टॉय टाइगर लाया वो एज अ गिफ्ट. इट वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. एक अनस्किल्ड कारपेंटर से कार्व किया क्योंकि वो बहुत सस्ता था. ठीक है. अगर आप देखोगे ना तो इसमें ना तो इसमें ऐसी चीज़ें निकली हुई होंगी. उसने कार्व किया है ना, ऐसी चीज़ें. अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी ना उसे. अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया तो ऑब्वियसली फिनिशिंग नहीं होगी अच्छे से. और वो इतना सस्ता था, मतलब कितना था, आई थिंक सो 300 रुपीज़, आई थिंक सो ऐसा था. ठीक. तो इट वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. अ टाइनी सिल्वर ऑफ वुड पियर्स हिज राइट हैंड. ठीक है. अब क्या हुआ, जब वो लेके आया, वो जो टाइगर था, वुडन टाइगर, जब वो अराइव हुआ तो उसका ऐसे छोटा छोटा निकला हुआ था, अनफिनिश्ड था, अनस्किल्ड कारपेंटर ने किया. और वो सस्ता था बहुत. ठीक है. तो वो बहुत सस्ता था, आई थिंक सो वो अब वो 2 आना and a quarter का था. But the shopkeeper knew that if he quotes such a low price, महाराजा के सामने बोला था होगा कि 2 आना, तो बोलेगा है इतना सस्ता. तो फिर उसने क्या बोला कि सिर्फ 300 रुपीज़. ठीक है. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. ठीक है. टुक इट अवे विद हिम, ले गए. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. वो टाइनी लिटिल वुडन टाइगर से पापा और बेटा खेल रहे थे मस्त. ठीक है. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. इट्स सरफेस वॉज रफ. टाइनी सिल्वर स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, जैसे मैंने आपको बताया. Quills all over it. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. महाराजास के राइट हैंड में वो लग गई, थोड़ी सी घुस गया. अब वो हट तो गई, निकल तो गई, पर उन्होंने महाराजा ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया. द नेक्स्ट, महाराजास राइट हैंड he pulled it out with his left hand. ऐसे उसने पुल आउट कर दिया. एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस. उससे उस प्रिंस के साथ खेलने कंटिन्यू करा. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड. जो उसका इन्फेक्शन था ना, अब उसने इतना ध्यान नहीं दिया ना, तो उसका जो इन्फेक्शन था वो पूरा उसके राइट हैंड में फैल गया. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरएटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर. मतलब पूरा आर्म्स में उसका जो पॉइजन था पूरे आर्म्स में वो फैल गया. जो इन्फेक्शन था वो आर्म्स तक फैल गया. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास. मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए कि राजा को कैसे ठीक करो, क्योंकि वो उसके राजगद्दी संभालना था उन्हें. तो आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. तीनों ने बातें की और उन्होंने सोचा कि चलो ऑपरेशन करते हैं. तो द ऑपरेशन टुक प्लेस. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट
मतलब जो थिएटर से बाहर आए वो बाहर आके उन्होंने क्या बोला, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया पर महाराजा मर गए, वाह वाह वाह। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। उस आप सोच सकते हो, अब उसने ये नहीं बोला था ना कि अब असली टाइगर या टॉय टाइगर अपना रिवेंज लेगा, तो उस 100th टाइगर, वो जो 100th टाइगर था उसने नहीं मारा था, किसने मारा था, हंटर ने मारा था, उसने नहीं मारा था, तो वो 100 टाइगर तो मरा ही नहीं ना, तो अब उसने टॉय टाइगर ने उसका रिवेंज ले लिया। A tiny silver of wood pierced his right hand infection flayed. Despite 3 surgeons from Madras, the king died. The 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. अब समझ में आया उसका नाम द टाइगर किंग क्यों रखा गया। द महाराजा कैरेक्टर स्केच। Arrogant and egoistic, believed he could challenge fate and astrologers. वो बिलीव करते थे कि वो जो इस एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज कर सकते हैं, अपने फेट को वो चैलेंज कर रहे थे, जो लिखा था उसको चैलेंज कर रहे थे। डिटरमाइंड, सिंगल माइंडेड, फोकस ऑन किलिंग 100 टाइगर, इग्नोरिंग ऑल ड्यूटीज। अपनी सारी ड्यूटीज को साइड में रख कर वो 100 टाइगर्स को मारने में जुटे हुए थे। Authoritarian, threatened subjects, double taxes, and lacked worldly wisdom. Tragic hero, despite his bravery, his hubris, excessive pride, led to his iconic end. मतलब उस पर इतना ऐसा था ना, लालच भरा हुआ था कि मैं एस्ट्रोलॉजर को भी गलत साबित कर दूंगा, अपने फेट को भी गलत साबित करके रहूँगा। The Divan and the astrologer. The Divan, a sycophant yes man who searched through resourcefulness. He is, मतलब जो राजा था वो सेल्फिशनेस था, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता। उसे शादी भी अपने लिए की थी कि उसको टाइगर्स मिल जाए, 30 टाइगर्स को मार पाए वो। He is terrified of the king and resorts to trickery, the Madras tiger, to save his job. The chief astrologer, the voice of destiny, he is firm in his prophecy. Even challenging the king, his prediction proved true, though in a very iconic way. थोड़ा iconic way में हुआ। The theme, fate versus power. Satire on power. Rulers misused authority for personal satisfaction. मतलब वो अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए अपने लिए काम कर रहा था, किसी और के बारे में सोच तक नहीं रहा था। Inevitability of fate, no matter how hard man tries, destiny cannot be changed. जो लिखा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा। Ecological disregard, the senseless slaughter of wildlife for sport lending to extinction. अब उसके कारण क्या हुआ, टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने लगे। सो दिस वॉज द स्टोरी, यही था पूरा जो कल्कि जी ने लिखा था। Important questions, बहुत स्पेशल, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम, कैसे मिला, what did the astrologer foretell, how did he save his kingdom from his British officer, what is the irony at the end of the story। तो ये सब आपको बताने, ये की टर्म्स है कि आपको उसमें आना ही चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो ये क्विज टाइम है, प्रीवियस ये क्वेश्चंस है। एट व्हाट एज वाज द महाराजा क्राउन? 20। How much did the diamond rings cost for Raja? It's 3 lakh rupees. The wooden tiger cost 2 annas and a quarter. From whom, where did Diwan bring the 100th tiger? People's Park, Madras. Okay? So questions. Thank you for watching this one shot. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Join the Topper Squad. Board exam 2026-27. Do this question answers. Do this test. And now we'll take a leave. Love you all. Bye bye. Do this question answers and do like, share, subscribe my channel. Okay. So all the best for your boards. Bye everyone. Bye bye. Love you all.